dear students. How are you all? I hope you all are very good and must be going very well. Welcome to the new session of Science Class 4th, chapter number 5, that is about food and digestion. So, students, as a living being, we all need food, all right, to derive energy, to be healthy, and also to stay alive. So, why do we need food? What the special substances the food has which help us in our survival? And how does the food gets digested in our body? That whole process is going to be discussed and cleared today in this session. All right. So the topics which we are going to cover in this lesson today, that is the nutrients, water, roughage, balanced diet, digestion, healthy eating habits, cooking food, and also the food preservation methods. First of all, you have to look at the picture given below. The pictures आपको given है. You have to write P for protein rich, C for carbohydrate rich, and F for fat rich food. ठीक है, यहाँ पर different types of food आपको given है. आपको protein rich food के लिए P लिखना है, carbohydrate rich food के लिए C लिखना है, and fat rich food के लिए F you have to write. So this is wheat. Wheat is a carbohydrate rich food, so we will write C over here. This is what? This is rice, again a carbohydrate rich food. Eggs are protein rich food. This is butter, again a fat rich food. This is cream, a fat rich food. Oil is a fat rich food. Alright. Peas are protein rich food. This is meat, again a protein rich food. And bread is a carbohydrate rich food. So like this, we have classified all of these into 3 categories. See, all living things need food for their survival. Food gives us energy and help us to grow. As I told you, कि सभी living beings को food की requirement होती है survival के लिए. Why? Because food हमें energy provide करता है, हमारी body growth में helpful होता है, हमें healthy रखता है and also protect us from the diseases. We get all the essential nutrients from the different types of food. Nutrients give us energy to work, play, and make our body strong enough to fight against the diseases. What they saying students कि हमें जितने भी essential nutrients हैं वो different types of food से मिलते हैं. Actual में ये nutrients हमें energy provide करते हैं so that आप क्या कर सको, work कर सको, you could play and also अपनी body को इतना strong बना सको कि you could fight against the diseases. Alright. Some nutrients helps to grow. कुछ nutrients हमारी growth में helpful होते हैं and कुछ nutrients हमारी body को immune जो है immunity provide करते हैं so that we could fight against the diseases. In our homes हमारे घर में भी students different types of food को prepare किया जाता है on the different occasions. So first of all the topic which we have is that is the nutrients. Nutrients क्या है? The substances which are used by us to survive, grow and do different types of work. वो सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी यूज करती है हमारे सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए एंड ऑल्सो टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. दो सब्सटेंसेस आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. एंड ये न्यूट्रिएंट स्टूडेंट्स डिफरेंट फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट क्वांटिटीज एंड हेंस इसीलिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम सभी डिफरेंट फूड आइटम्स को एक करेक्ट या एक्यूरेट अमाउंट में खा लें. We have 5 main nutrients in our food, that is the carbohydrate, fat, protein, vitamin and milk. Okay, so the 5 main nutrients in our food, हमारे food में जो 5 main nutrients present होते हैं, that is the carbohydrate, fat, proteins, vitamins and minerals. First of all, we are going to talk about carbohydrates. The carbohydrates give us energy to work. ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वर्क करने के लिए एंड देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट्स को वी कॉल एनर्जी गिविंग फूड. शुगर, स्टार्च, फाइबर ये हमारे 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ फूड्स. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ अवर ब्रेन. कार्बोहाइड्रेट्स हमारी ब्रेन, हार्ट, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम इन सभी की प्रॉपर वर्किंग के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड. ऑलराइट. पोटैटो, राइस, ब्रेड एंड बनाना ये क्या है रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है. पीपल हु डू फिजिकल वर्क वो लोग जो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें एक ऐसी डाइट चाहिए विच शुड बी रिच इन कार्बोहाइड्रेट.
बट टू मच इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन मेक अस फैट। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, देन इट कुड मेक यू फैट। सेकंड, वी हैव फैट्स ओनली। फैट्स क्या है? दे गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स भी स्टूडेंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स ये हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट इज ऑल्सो नीडेड। फैट की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में फैट सॉल्युबल वाइटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए भी होती है। एंड फैट जो है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड ऑल्सो फॉर द हेल्दी स्किन। फैट ऑल्सो कीप अस वार्म। फैट हमें वार्म भी रखता है। ऑयल, बटर, घी, नट्स, ये सभी क्या है? दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स। टू मच ऑफ फैटी एंड ऑयली थिंग्स मेक अस फैट एंड ओबेस। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फैटी या ऑयली थिंग्स को खाते हैं, इट कुड मेक यू फैटी एंड ऑल्सो ओबेस। ठीक है? They have given you all of these. This is your cream, nuts, butter, ghee and all. All of these are what? These are the sources of fat. Fat and carbohydrates are called energy giving food. So students, क्योंकि fats and carbohydrate दोनों ही हमें energy provide करते हैं, therefore they will be called as energy giving food. Next we have what? Proteins. Proteins क्या है? Proteins help in body building. Proteins हमारी body building में help करते हैं। They help to grow new cells and repair old cells in the body. हमारी बॉडी में न्यू सेल्स की ग्रोथ एंड ओल्ड सेल्स की रिपेयरेंस, दोनों का काम किसके थ्रू किया जाता है? बाय द प्रोटीन्स। प्रोटीन इज अ सेकेंड मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस। प्रोटीन हमारी बॉडी में सेकेंड मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस होता है नेक्स्ट टू वाटर। एंड प्रोटीन का यूज किया जाता है बाय द बॉडी टू मेक मसल, ऑर्गन्स एंड द अदर टिश्यूज सच एज स्किन एंड हेयर। दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर बॉर्न आउट टिश्यूज। प्रोटीन्स जो हैं बॉडी में बॉर्न आउट टिश्यूज को रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, एंटीबॉडीज बॉडी में बनाते हैं जो सिकनेस के अगेंस्ट फाइट करेंगी। प्रोटीन स्पेशली इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स फॉर द ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड नर्सिंग मदर्स के लिए प्रोटीन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। मिल्क, एग, चीज, पल्सेस, मीट, फिशेस, all of these are the rich sources of protein. Alright, and proteins are called what? Bodybuilding food, because they help the body to grow. Next we have vitamins. Vitamins क्या है? Food rich in vitamins help us to fight against diseases. Students, ऐसे food items जो vitamin rich होते हैं, वो diseases के against fight करने में हमारी body की help करते हैं। And vitamins की जो requirement है, काफी small quantity में होती है हमारी body के through. ठीक है? ऑल्सो दे हेल्प अवर आईज। उसके अलावा हमारी आईज, नर्व्स, गम्स एंड स्किन जो भी प्रॉपरली वर्क करती हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ वाइटामिन ओनली। वाइटामिन ए, स्टूडेंट्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन। जैसे कि वाइटामिन ए जो है वो हमारी आईज एंड स्किन को हेल्दी रखते हैं। वाइटामिन बी जो है हमारी मसल एंड नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है। वाइटामिन सी हमारे गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे जो वुंड्स हैं उन्हें हील करते हैं। वाइटामिन डी हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, फिश, मिल्क, ये सभी क्या है? दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। नेक्स्ट वी हैव मिनरल्स। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। आपकी बॉडी में बोन्स, टीथ और ब्लड की फॉर्मेशन के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, आयरन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके मिनरल्स के। एंड मिनरल्स आर ऑल्सो नीडेड। जैसे वाइटामिन्स की रिक्वायरमेंट काफी कम होती है हमारी बॉडी में, सिमिलरली मिनरल्स आर ऑल्सो नीडेड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी टू कीप अस फिट एंड हेल्दी। सी कैल्शियम, कैल्शियम कैसे प्रेजेंट होता है? मिल्क में एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। एंड कैल्शियम का काम है हमारी बोन्स एंड टीथ को बिल्डअप करना। फिर कुछ वेजिटेबल्स हैं लाइक स्पिनच एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल, इनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड की हेल्प करता है to carry the oxygen to different parts of your body. Then some minerals like calcium, iron, potassium, iodine, ये सब भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन इन स्मॉल अमाउंट। ऑलराइट, एंड बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स है उनके थ्रू इनकी रिक्वायरमेंट होती है इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। इफ यू टॉक अबाउट टेबल सॉल्ट, तो टेबल सॉल्ट एक बहुत अच्छा सोर्स है आयोडीन का, विच वी ऑल शुड इनटेक। ऑलराइट, द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज वाटर। वाटर क्या है? इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर डाइट। वाटर हमारी डाइट का एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। वाटर आपका मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है बॉडी में, एंड वाटर के बाद जो नेक्स्ट अबंडेंट सब्सटेंस है दैट इज प्रोटीन।
सो वाटर एक्चुअल में क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करता है हमारी बॉडी में, सो दैट बॉडी उसको इजिली यूज कर सके। ऑल्सो वाटर रेगुलेट्स अवर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। आवर बॉडी लूजेज अ लॉट ऑफ वाटर, हमारी बॉडी काफी ज्यादा वाटर लूज करती है स्वेट एंड यूरिन की फॉर्म में। वी फील थर्स्टी व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इन अवर बॉडी बिकम लेस, जब आपकी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर वो कम होने लगती है तब आपको थर्स्टी फील होता है, यानी कि आपको प्यास लगनी शुरू होती है। ऑलराइट, एंड हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे अराउंड 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वी हैव रफेज। सो रफेज क्या है? रफेज इज अ फाइबर प्रेजेंट इन द फूड, खाने में जो फाइबर पार्ट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड रफेज। इट डज नॉट गेट डाइजेस्टेड, रफेज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, बल्कि डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट। दिस हेल्प्स टू मिनिमाइज, एंड इससे क्या होता है, हमारे जो चांसेस है ओवर ईटिंग के वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं। रफेज कैन नॉट बी टोटली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। स्टूडेंट्स, रफेज को बॉडी टोटली यानी कि पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, एंड जो अनयूज्ड पोर्शन होता है बल्क मटेरियल का, वो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है एंड ऑल्सो इन द हेल्दी फंक्शंस ऑफ द बॉवल सिस्टम। द क्लीनिंग एक्शन, उसके अलावा जो क्लीनिंग एक्शन है हमारी बॉडी का, वो क्या करता है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उन्हें लेस प्रोन रखता है टू द इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। ऑलराइट, एप्पल, guava, peas, ladyfinger, raw vegetables, what are these? These are the rich sources of roughage. Alright, chalo. Now the next topic which we have that is balanced diet. To stay fit, active and healthy, we should eat food items from all the food groups. What they're saying कि fit, active and healthy रहने के लिए हमें जो है सारे food items को खाना चाहिए, और वो food items सारे ग्रुप से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। अ डाइट दैट कंटेन्स, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, रफेज, वाटर, इन सभी की एक करेक्ट अमाउंट होती है। ऑलराइट, एंड ये करेक्ट अमाउंट एक बॉडी के थ्रू रिक्वायर्ड भी है टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड डिजीज फ्री। सच टाइप ऑफ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, ठीक है। इट इज एसेंशियल टू हैव अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट होना जरूरी है, लेना जरूरी है, सो दैट आपकी बॉडी हेल्दी रहे एंड प्रॉपरली ग्रो करे। नाउ फॉलोइंग अदर एडवांटेजेस, बैलेंस डाइट के क्या एडवांटेजेस है? नंबर 1, वी फील बेटर, जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपको बेटर फील होता है। सेकेंडली, आप हेल्दी रहते हो, फ्री फ्रॉम डिजीजेस रहते हैं। राइट, चलो। सेकेंड वी हैव व्हाट? मिल्क। मिल्क क्या है? मिल्क इज अ कंप्लीट फूड इन इटसेल्फ, अपने आप में मिल्क एक कंप्लीट फूड है। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक डेली डाइट के लिए एसेंशियल है। द मिल्क इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड बी। मिल्क जो है विटामिन ए एंड विटामिन बी का भी अच्छा सोर्स है। कैल्शियम प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो हमें हेल्दी बोन्स एंड टीथ प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, इट इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्गर नेल्स एंड हेयर के लिए बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो यू शुड ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क डेली फॉर अ हेल्दी बॉडी। इसीलिए हमेशा हमें अपनी हेल्दी बॉडी को रखने के लिए एटलीस्ट एक दिन में 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क ड्रिंक करना चाहिए। So now let's come to the topic that is digestion. So we all eat food, as we all know, हम सभी food खाते हैं and food हमें energy provide करता है. It protects us against the diseases. So the food we eat cannot be used as it is by our body, and to make the food usable, it must be digested. What they're saying is जो food students आप खाते हो, उसे हमारी body directly use नहीं कर सकती है। Food को usable बनाने के लिए उसे digest करना जरूरी है। And digestion क्या है? It is a process of breaking the food down into simpler and soluble form so that it could be used by the body. एक ऐसा process जहाँ पे food को बहुत ही simple and soluble form में break किया जाता है so that उसे हमारी body absorb कर सके, use कर सके. This process is known as digestion process. Let's discuss the whole process of digestion. The process of digestion involves many steps and is carried out by the digestive system. जो digestion का process है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं एंड इसको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मिलकर कैरी आउट करता है, ठीक है। फूड डाइजेशन प्रोसेस में स्टूडेंट्स वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं एंड उन सभी ऑर्गन के क्या क्या फंक्शन है इन द डाइजेशन ऑफ फूड, लेट्स लर्न अबाउट इट। सो द वेरी फर्स्ट ऑर्गन इज माउथ। एक्चुअल में स्टूडेंट जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है।
In the mouth, we have teeth, salivary glands, and tongue. Teeth play an important role in digestion of food. Teeth जो है फूड को डाइजेस्ट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज टीथ जो है फूड को च्यू करते हैं एंड च्यूइंग करने से फूड जो है स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है. आफ्टर दैट हमारे माउथ में एक्चुअल में टंग में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं एंड वो सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं माउथ में जो फूड के साथ मिक्स होता है एंड इसके बाद ये सलाइवा फूड को सॉफ्ट कर देता है इनटू अ पल्प एंड ऑल्सो उसके साथ साथ फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसे शुगर में कन्वर्ट करता है. Alright? The tongue pushes bits of this mashed food into the throat where it is swallowed. उसके बाद टंग जो है इस मैश फूड के छोटे छोटे बिट्स को थ्रोट के अंदर पुश करती है जिससे कि आप उसे अंदर की तरफ सोलो कर लें. एंड उसके बाद फूड जो है एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं उसके थ्रू वो फूड क्या मूव करता है एंड दैट फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज एसोफेगस. ठीक है. सो एक्चुअल में वो फूड उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फूड पाइप और एसोफेगस के थ्रू मूव करेगा एंड इट विल एंटर द स्टमक थ्रू द फूड पाइप. यू कैन सी दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम दे हैव शोन यू. ठीक है. सो यहाँ से माउथ से आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है फिर दिस इज एसोफेगस और फूड पाइप फिर खाना जाएगा स्टमक में स्टमक से जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एंड देन रेक्टम एंड देन एनएस के थ्रू आप योर लिवर एंड देयर इज एन अनदर ऑर्गन नोन एज pancreas. They are also included in the process of digestion. Less known. So now back to the topic. So now the food has entered into the stomach through esophagus or food pipe. So now in the stomach. Stomach क्या है? It is a hollow bag-like structure made up of muscle. एक hollow bag जैसा structure है जो muscles का बना है आप उसे stomach कहते हो. And stomach जो है food को store करता है for 1 to 4 hours. ठीक है. स्टमक की जो मसल्स होती हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग जो कि कुछ एंजाइम्स का यूज करके उस फूड को फर्दर ब्रेक करती हैं एक यूजेबल फॉर्म में. एंड मोस्ट ऑफ द फूड ज़्यादातर जो फूड है आपका कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में ही डाइजेस्ट हो जाता है एंड उसके बाद जो वो सेमी सॉलिड पेस्ट है फूड का देन इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक. After that, small intestine क्या है? It is about a 22 feet long muscular tube that breaks down the food using enzymes released by the pancreas and the bile from the liver. Very important. Small intestine हमारे digestive system का सबसे बड़ा organ है जो कि around 22 feet long होता है. एक muscular tube जैसा structure है जो कि food को break करता है उन enzymes का use करके जो pancreas ने release करे हैं and also the bile juice which is released by the liver. Alright. सो कॉन्टेंट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के जो कॉन्टेंट्स है वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में स्टार्ट करते हैं एंड एक लिक्विड फॉर्म में एंड हो जाते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑर्गन. द पेंक्रियास क्या एक्सक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड इन डाइजेस्टिव एंजाइम फूड के अंदर प्रेजेंट फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं. आफ्टर दैट बाइल जूस जो कि लिवर के थ्रू सिक्रेट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंड ये बाइल जूस फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है. ऑल्सो वी हैव गॉल ब्लैडर भी एक ऑर्गन है जो कि एक्स्ट्रा बाइल जूस को स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट करता है सो दैट इट कुड एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट द फैट्स फर्दरमोर. The liver, gallbladder and the pancreas. As I told you, liver, gallbladder and pancreas जो है small intestine की help करते हैं to completely digest the food. And digestion of all the components इसके बाद food के सारे components का जो digestion है student वो small intestine के अंदर ही complete होता है. And जो end products मिलते हैं now they are ready for the body to be absorbed. The absorption of various nutrients उसके बाद various nutrients का जो absorption है जो आपके डाइजेस्टेड फूड के अंदर प्रेजेंट है उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर होता है थ्रू द मेम्ब्रेन्स व्हिच आर कॉल्ड एब्जॉर्प्शंस एंड द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स उसके बाद एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर एक सेल तक लेकर जाया जाता है बाय द ब्लड. नेक्स्ट वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन. सो लाइक द स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है फूड को चर्न करता है अगेंस्ट इट्स म्यूकस लाइनिंग एंड ऑल्सो मूव्स इट्स फॉरवर्ड. उसके अलावा उसको आगे की तरफ भी मूव करता है अपने पीरियोडिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू. बट दिस प्रोसेस ये जो प्रोसेस है काफ़ी स्लो होता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट 24 आवर्स में होता है कंप्लीट. एंड डाइजेशन ऑल्सो हैपन्स है यहाँ भी डाइजेशन होता है बट
एंजाइम्स के थ्रू नहीं होता as it did in the small intestine. Alright? Then NS में क्या होगा? अब जो undigested food है, it moves from the large intestine into the rectum. So अब undigested food जो बचा वो large intestine से rectum में जाता है and finally उसको NS के through body से remove कर दिया जाता है. So this is how the whole digestion process gets completed in our body and the food gets digested by us. Alright? Next we have the topic healthy eating habits. Now, we should develop the following habits to develop our digestive system work properly, to help our digestive system work properly, and this will keep the body fit and healthy. What they're saying कि हमें कुछ habits को students क्या करना चाहिए, develop करना चाहिए so that हमारा digestive system properly work कर सके. And इससे हमारी body fit and healthy की रहती है. So what are those healthy eating habits? Number 1, never eat. कभी भी आपको uncovered या stale food नहीं खाना है. Always eat at a fixed time. Then eat slowly. हमेशा slowly खाएंगे and food को properly chew करेंगे before swallowing. Wash both hands. दोनों ही hands को wash करना चाहिए before and after eating. Always eat a balanced diet. हमेशा balanced diet लेंगे. Overeating को avoid करेंगे. Try to eat fresh food only. कोशिश करनी है कि हम fresh fruit ही खाएं, fresh food खाएं, and also preserve food avoid करें. And also drink plenty of water. Alright? Now the next topic we have is cooking food. We can eat some food raw while some foods need to be cooked. So cooking kills germs, makes the food soft, tasty and easier to digest. What they're saying students कि कुछ ऐसे food items हैं जिन्हें आप raw खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे food items हैं जिन्हें cook करना ज़रूरी होता है. So actual में cooking से क्या होता है, food के अंदर जो germs है वो kill हो जाते हैं, food soft हो जाता है, tasty हो जाता है and body के लिए उसे digest करना भी easy हो जाता है. So wash all raw food well. जितना भी raw food है उसको आपको properly cooking करने से पहले wash करना चाहिए so that सारे dust and germs उसमें से remove हो जाए. Secondly, wash fruits and vegetables. Fruits and vegetables को cut करने से पहले आप wash करेंगे because अगर आप उन्हें cut करने के बाद wash करते हैं then they lose their nutrients. Third, water in which pulses and grains are washed. जिस पानी में आप pulses और grains को wash करते हो उसे आपको throw नहीं करना है because इसके अंदर vitamins होते हैं. आप इस water का use कर सकते हैं while cooking. Alright? Then for boiling के लिए आपको सिर्फ उतना ही water लेना है जितना required है. Why? Because water which has absorbed nutrients. ऐसा पानी जिसके अंदर absorbed nutrients होते हैं, है ना, food में से उसे हमें throw नहीं करना चाहिए. Do not overcook. Food को overcook या reheat नहीं करना चाहिए because इससे उसके जो nutrients हैं वो destroy हो जाते हैं. Now again amazing fact they have given you, that is milk. Milk क्या है? It is a complete food. इसके अंदर carbohydrates, mineral and even fats भी present होते हैं. Secondly, food does not need gravity to get to your stomach. Food को क्या gravity की जरूरत नहीं होती है आपके stomach के अंदर रहने के लिए. Now different foods को different ways में cook किया जाता है, like steaming से आप cook कर सकते हो. For example, idlis को steam करके cook किया जाता है. Baking से जैसे कि हम cakes बनाते हैं. Boiling, egg को boil किया जाता है. Roasting, that is meat. Frying, that is fishes. So ये सभी जो है steaming, baking, boiling, roasting, frying, all of these are different methods of cooking food. The next topic we have is food preservation. The process of treating food in a way that preserve it for a long time, it is called food preservation. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप फूड को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो कि वो एक लंबे टाइम पीरियड तक सही रहता है, प्रिजर्व रहता है, दैट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन. सो अब हम अपने फूड को डिफरेंट वेज में प्रिजर्व कर सकते हैं, लाइक फ्रीजिंग द मीट, डिहाइड्रेटिंग द पीस, सॉल्टिंग द पिकल्स, sweetening the jams, canning the fruits and juices, etc. Alright? आप मिल्क को सेव कर सकते हो by the method known as pasteurization. Then thirdly, mint and coriander को प्रिजर्व किया जाता है by sun drying. And meat, milk and eggs को हम रेफ्रिजरेटर्स में रखते हैं एक लो टेम्परेचर पे for the preservation. Alright? Now let us recall the chapter. Number 1, we get all nutrients. सारे nutrients हमें कहाँ से मिलते हैं? Essential nutrients from the food. Secondly, proteins की बात करें, proteins body building में help करते हैं. Carbohydrates and fats हमें energy provide करते हैं. And vitamins and minerals protect us from the diseases.
थर्ड रफेज, रफेज क्या है? फूड में जो फाइबर वाला पार्ट है दैट इज नोन एज रफेज। देन डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। आफ्टर दैट डाइजेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? दैट इज माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एलएस। देन कुकिंग, कुकिंग से स्टूडेंट्स फूड आपका सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट होता है। एंड प्रॉपर फूड हैबिट्स हमें हेल्दी एंड फिट रखती हैं। ऑलराइट, so that's all for the chapter which we have completed. Kind of a lengthy but was an interesting chapter, and I hope you must have understood it. So let's meet very soon. Till then, keep going well, and thanks to everyone.